اور اب خبر تفصیل سے مشرقی ترکی میں برفباری تودے گرنے سے کم از کم 33 امدادی کارکن ہلاک ہو گئے جبکہ درجنوں امدادی ورکرز زخمی ہوئے ہیں۔ متعدد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ایمرجنسی ریسکیو آپریشن میں 25 ورکروں کو برف سے نکالا ہے۔ متعدد ورکروں کے اب بھی برف کے نیچے دبے رہنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں کا اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور برف کے تودے گرنے کے بعد ایمرجنسی سروس راحت اور بچاؤ کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ پہلے برفانی تودے گرنے سے ایک ایمبولینس اور منی بس برف میں دب گئی تھی جبکہ دوسرا برفانی تودا 300 امدادی ورکروں پر گرا تھا۔ یورپی یونین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے ایک بیان کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے پیش کیا جانے والا یہ منصوبہ بین الاقوامی معاہدوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یورپی یونین نے اسرائیل فلسطین تنازع کی تصفیہ کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پیش کیے گئے امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے مشرق وسطی میں امن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے پر یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ ان کی تجویز اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ماضی میں ہونے والے معاہدوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یورپی یونین میں خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان براہ راست بات چیت پر زور دیا۔ جوزف بوریل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ منصوبہ بین الاقوامی سطح پر متفقہ پیمانوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ حل نہ ہونے والے تصفیہ طلب مسائل فریقین آپس میں براہ راست مذاکرات سے حل کر لیں اور کسی بھی ایسی یک طرفہ کارروائی سے گریز کریں جس سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر سے متعلق بیان میں کہا گیا کہ ایسی بستیوں کو ضم کرنے کی جانب اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اسے چیلنج کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے جب ٹرمپ نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تو یورپی یونین نے کہا تھا کہ وہ اس کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین کو کسی بھی معاملے پر رد عمل سے قبل اتفاق رائے کے لیے سبھی سے صلاح و مشورہ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے عموماً اس کا رد عمل تاخیر سے آتا ہے۔ اسرائیل نے یورپی یونین کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ایران کے اعلیٰ مذہبی رہنما آیت اللہ علی خامنئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی امن منصوبے کو بکواس قرار دیا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے اس نام نہاد امن منصوبے پر پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ پیش گوئی کی کہ یہ منصوبہ ٹرمپ کی زندگی میں ہی چکنا چور ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا ناکام ہونا یقینی ہے۔ قطعاً به نتیجه نمیرسه. این طرح قبل از مردن ترامپ این طرح میمیره. این کاری که اینا انجام دادن و دنبالش هستن اولا احمقانه است، ثانیاً نشانه خباثت است، ثالثاً از همین الان شروع کار به ضرر خودشونه۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے شامی فورسز کے خلاف فوجی کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ اردغان کا کہنا ہے کہ اگر دھمکی دی ہے کہ اس مہینے کے آخر تک شمالی شام میں پہلے سے جاری فائر لائن سے شامی فوج واپس نہیں ہٹتی ہے تو ترکی اس معاملے کو اپنے طریقے سے نپٹنے پر مجبور ہوگا۔ واضح ہے کہ پیر کے روز ادلب میں ترکی اور شام کی افواج میں ہوئی جھڑپ کے دوران متعدد ترک اور شامی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری جانب شامی فوج نے ملک کے شمال مغرب علاقے ادلب میں اپنی فوجی آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کارروائی پر ترکی اور شام کے درمیان پہلے سے پائی جانے والی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان واضح کر چکے ہیں کہ وہ شامی فوج کو شورش زدہ علاقے میں مزید زمین پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ Rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. Bugüne kadar rejimin İdlib'de yaptığı saldırıların gerekçesi diye sunulan
आगे बढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में आलमी उमूर में अमरीकी किरदार और मईशत की खुशनुमा तस्वीर पेश करते हुए कहा कि उनकी दयानतदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अमरीकी सदर ने अपने खिताब में जारहाना पॉलिसी का खारजा पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि वो अमरीकियों की जिंदगी का तहफ्फुज करने के साथ मशरिक़ वस्ता में अमरीका की जंगें खत्म करने के लिए भी काम कर रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ मवाख़िज़े की हालिया कार्रवाइयों के पस मंज़र में अपनी कारकर्दगी का तफसील से जिक्र किया। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों से 1 घंटा 18 मिनट तवील तकरीर के दौरान सदर ट्रंप ने अपने खिलाफ जारी मवाख़िज़े की कार्रवाइयों का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुझसे पहले आने वाले बहुत से लोगों के बरखिलाफ मैंने अपने वादे पूरे किए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि सदर ट्रंप फिलहाल मवाख़िज़े का सामना कर रहे हैं, जबकि इस साल नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। ट्रंप का कहना था कि गुज़िश्ता 3 बरस कबल उन्होंने अमेरिका की अज़मत रफ्ता वापस लाने का आगाज किया और इसके नताइज शानदार सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि अब अमेरिका कभी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। The years of economic decay are over. The days of our country being used, taken advantage of, and even scorned by other nations are long behind us. Gone too are the broken promises, jobless recoveries, tired platitudes, and constant excuses for the depletion of American wealth, power, and prestige. In just 3 short years, we have shattered the mentality of American decline, and we have rejected the downsizing of Americans' destiny. We have totally rejected the downsizing. We're moving forward at a pace that was unimaginable just a short time ago, and we are never, ever going back. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिका हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो भी माजी की पॉलिसियां जारी रखते तो आज अमेरिका में ये तरक्की न होती। गुज़िश्ता इंतजामिया के 8 साला दौर में 3 लाख अफराद को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जबकि उनकी इंतजामिया के सिर्फ 3 साल में 35 लाख अफराद को रोजगार मिला। साबिका दौरे सदारत में 60,000 कारखाने बंद हो गए, जबकि उनकी इंतजामिया में 12,000 नए कारखाने खोले गए। सदर ट्रंप ने मुल्की मईशत के फरोग के लिए अपनी इंतजामिया की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने चीन के साथ नया तिजारती मुआहदा किया, जो कि अमेरिकी मुलाजमीन का दिफा करेगा और इस तरह अमेरिका की मसनूआत और पैदावार के लिए नए वसी बाजार भी खुलेंगे। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा के साथ अपनी इंतजामिया के नए तिजारती मुआहदों नीज चीन के साथ तिजारती जंग को खत्म करने के लिए इब्तिदाई मुआहदे की तारीफ भी की। खारजा पॉलिसी का जिक्र करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका की जिंदगी का तहफ्फुज करने के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जंगें खत्म करने के लिए भी काम कर रहे हैं। My administration is also strongly defending our national security and combating radical Islamic terrorism. Last week I announced a groundbreaking plan for peace between Israel and the Palestinians. Recognizing that all past attempts have failed, we must be determined and creative in order to stabilize the region and give millions of young people the chance to realize a better future. सदर डोनाल्ड ट्रंप जब तकरीर के लिए आए तो उन्होंने रिवायत के बरखिलाफ डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाली स्पीकर नैन्सी पेलोसी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और तकरीर के इख्तिताम पर पेलोसी ने सदर ट्रंप की तकरीर की कॉपी फाड़ दी। दूसरी जानिब तकरीर के दौरान हुक्मरान रिपब्लिकन अरकान वक्फे से तालियां बजाकर सदर का हौसला बढ़ाते रहे, जबकि अपोजिशन डेमोक्रेट अरकान खामोश ही रहे। तारकीन वतन के मसले का जिक्र करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि उनकी इंतजामिया ने अमेरिका की जुनूबी सरहद को महफूज बनाने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए हैं और वहाँ एक बुलंद और तवील दीवार तामीर की जा रही है। काबिल गौर है कि स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के मौके पर वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर खुआन ग्वाइडो मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, क्योंकि व्हाइट हाउस सदर निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का सरबराह मानने के बजाय खुआन ग्वाइडो को जुनूबी अमेरिकी मुल्क का उबूरी सदर
तस्लीम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने रद्द अमल देते हुए अमेरिकी सदर की माशी और सेहत आम्मा से मुतालिक पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। बाज डेमोक्रेटिक रहनुमाओं का कहना है कि सदर ट्रंप की नाकाम माशी पॉलिसी के बायस अमीर तबका ज्यादा मरात याफ्ता, जबकि मजदूर, किसान और मुलाजमत पेशा अफराद माली दबाव का शिकार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली रियासत मिशिगन की गवर्नर ग्रिचेन विटमर ने अपने रद्द अमल में कहा है कि रिपब्लिकन्स अवाम से सेहत आम्मा की सहूलियात वापस लेना चाहते हैं। विटमर के अलावा रियासत टेक्सास से डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस वेरोनिका एस्कोबार ने भी कहा कि रिपब्लिकन्स हर उस सहूलत के खिलाफ काम कर रहे हैं जो अमरीकी अवाम की जिंदगियां बचाने के लिए मददगार हो सकती है। और अब खबर चीन से है, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। हर गुजरते वक्त के साथ इस मोहलिक वायरस के बायस हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वायरस ने अब तक 500 अफराद की जान ले ली है। चीन में कोरोना वायरस पर काबू पाने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। चीन में इस मोज़ी वायरस से 4 फरवरी को मजीद 65 हलाकतें हुई। ये तमाम हलाकतें चीन के सबसे ज्यादा मुतासरा सूबे हुबाई में हुई। इस तरह हलाकतों की तादाद तकरीबन 500 हो गई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कोरोना वायरस के लगभग 4000 नए तस्दीक शुदा केसेस रजिस्टर हुए हैं। कमीशन के मुताबिक हलाक होने वाले 80% अफराद की उम्रें 60 साल से ज्यादा थीं, जबकि इन 80% अफराद में से 75% वो थे जो कि पहले ही किसी न किसी बीमारी का शिकार थे। वहीं दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने चीन के इन इक़दामात की तारीफ की, जिनकी मदद से मोहलिक कोरोना वायरस को वसीतर आलमी बहरान बनने से रोका जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहान ने कहा कि चीन ने इस वायरस के मरकज वुहान में जो इक़दामात उठाए वो उसके फैलाव को रोकने का अच्छा तरीका है। ये तारीफ एक ऐसे वक्त में की गई जब चीन में हुक्काम पर इस वजह से तनकीद की जा रही है कि वो इस वायरस के फैलाव को इब्तिदाई सतह पर अच्छे अंदाज में कंट्रोल न कर सके। जिनेवा में टेक्निकल ब्रीफिंग में बातचीत में आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि चीन की जानिब से उठाए गए इक़दामात की बदौलत उम्मीद की एक नई किरण फूटी है। आइए इस मौके को इस वायरस के मजीद फैलाव और इसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चीन की जानिब से लिए गए सख्त इक़दामात की बदौलत चीन के सबसे ज्यादा मुतासरा शहर वुहान में हजारों शहरी लॉकडाउन की कैफियत से गुजर रहे हैं और इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उन पर कई तरह की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। हालांकि 4 फरवरी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आला क़यादत ने ये तस्लीम किया था कि हालिया मुहलिक कोरोना वायरस के नाम से पहचानी जाने वाली वबाई बीमारी से निपटने के लिए हुकूमत का जो रद्दअमल सामने आया था उसमें कोताहियां और नकाइस थे। ऐसा कम ही देखने में आया है कि कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इन कोताहियों को तस्लीम किया हो। इसी कमेटी ने चीन के हंगामी हालात से निपटने की इंतजामी सलाहियतों को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। इसी कमेटी ने शहरों में गैर कानूनी तौर पर बनने वाली जंगली जानवरों की खरीदो फरोख्त की मंडियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस ऐसी ही मंडियों से निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर चीन से फैले कोरोना वायरस से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस मोहलिक वायरस से कई ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है और इन ममालिक में वायरस के नए केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया के 24 से ज्यादा ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। इस पुरअसरार वायरस ने कई ममालिक की नींद उड़ा दी है। मलेशिया में 5 फरवरी को मोहलिक वायरस के 2 नए केसेस दर्ज हुए हैं। मलेशिया के वजीर सेहत ने 2 नए केसेस की तस्दीक की है। इस तरह मलेशिया में इस वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 12 हो गई है। फिलिपाइन में भी वायरस का एक नया केस दर्ज हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने इस बात की तौसीक की है कि जापान के क्रूज शिप में मौजूद 2 ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदे वायरस से मुतासिर हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा ने इसकी तस्दीक की है। ख्याल रहे कि जापान के एक बहरी जहाज को अलहदगी में रखा गया है जो वुहान से
3,711 मुसाफिरों को लेकर जापान पहुंचा था। इस जहाज में अब तक 10 अफराद इस वायरस से मुतासिर बताए गए हैं। जापान में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 33 हो गई है। जापान ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए फौज के ज़ेरे इस्तेमाल समुद्री जहाज हाकू को अस्पताल का दर्जा दे दिया है। हाकू जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के करीब योकोसुका बेस पर लगरअंदाज है, जिसमें 300 अफराद आराम से रह सकते हैं, जबकि जहाज की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 500 अफराद की है। न्यूजीलैंड का एक तैयारा 190 अफराद को लेकर वुहान से ऑकलैंड पहुंचा। न्यूजीलैंड के हुक्काम के मुताबिक अब तक इन अफराद में वायरस की अलामात नहीं पाई गई हैं। थाईलैंड के एक मुसाफिर तैयारे ने भी अपने 138 बाशिंदों को वुहान से निकाला। कोरोना वायरस से हांगकांग और फिलिपाइन में एक एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि कई अफराद इस मौजी मर्ज से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के अमेरिका में 11 केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान, बरतानिया, रूस और जर्मनी समेत कई ममालिक में कोरोना वायरस के मुतअद्दिद केसेस दर्ज हैं। तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में कई ममालिक ने चीन से आने वाले अफराद के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। इस मौजी वायरस ने आलमी मईशत को भी खतरे से दोचार कर दिया है। वियतनाम का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस इनकी एविएशन, सयाहत और ज़राअत की सनतों को बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा है। हुक्काम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अगर चीन की मईशत सुस्त रवि का शिकार हुई तो इसका बराह रास्त असर वियतनाम की मईशत पर पड़ेगा, क्योंकि चीन वियतनाम का एक बड़ा तिजारती शराकतदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जुनूबी न्यूजीलैंड में मूसलाधार बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाब ने सैकड़ों अफराद को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। हुक्काम ने बताया कि गोरतमाराओ और विंडाम के कस्बों में सैलाबी रैलें दाखिल हो गए हैं। एक सयाहती मकाम मलफोर्ड साउंड में कई सौ सयाह सैलाबी सूरत हाल में फंस कर रह गए। इन सयाहों की मुंतकली के लिए मकामी इंतजामिया को हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। कई पहाड़ी और जंगलाती रास्तों के साथ साथ राब्ते की सड़कें भी मिट्टी के तूदे गिरने से बंद हो गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। About the flooding and all that type of thing. So we've been up probably about just since 5 this morning, just loading sandbags and everything. Just the communities all got together, and we're just trying to help people get out of their houses and secure all their stuff. And I mean, as you can see, all the guys around here just trying to load things up and help out at the moment, which is pretty good. So we've actually exceeded the design limit of the flood defences here, which is why we've initiated some major evacuations ahead of that. But at the moment, and I've got everything crossed, the flood defences are actually holding. So we're hoping and praying that the waters now start levelling off, which we've got some signs that they are. It's as bad as I've seen it in terms of level, and I understand it is the most that's ever gone through this channel. But one thing that is really pleasing is that the flood banks here are designed to there's more water going through than they're designed for. So that's a real bonus actually. It's really quite encouraging. But वर्ल्ड पैसेंजर ट्रैफिक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सफर के एतबार से दुबई ने दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट का एजाज बरकरार रखा है। दुबई इंटरनेशनल के मुसाफिरों की तादाद में गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत 3% की कमी हुई है। ताहम इसके बावजूद ये पहले मकाम पर ही है। बताया गया कि सन 2019 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद 86 मिलियन से ज्यादा रही। यह तादाद दूसरी पोजीशन पर आने वाले लंदन के हेथ्रो हवाई अड्डे से 6 मिलियन ज्यादा है। यह मुसलसल छठा बरस है कि दुबई एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी सफर के लिए दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है। और अब क्रिकेट। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हैमिल्टन में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम ने टीम इंडिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की टीम ने तजुर्बेकार बल्लेबाज रॉस टेलर की शानदार नॉट आउट सेंचुरी और कप्तान टॉम लेथन की तेज तर्रार 69 रनों की इनिंग्स की बदौलत 347 रनों के एक बड़े हदफ का कामयाबी से पीछा किया।
कीवी बल्लेबाजों के सामने आज टीम इंडिया के गेंदबाज बेअसर रहे। रॉस टेलर ने 109 रन बनाए और वो टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। इससे कबल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि विराट एंड कंपनी न्यूजीलैंड में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखेगी, लेकिन टेलर और लेथम ने इस पर पानी फेर दिया। टेलर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हिंदुस्तान की जानिब से सुरेश अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, लेकिन वो रायगा गई। हिंदुस्तान ने इससे पहले 5 मैचों की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश किया था। Yeah, obviously it's always nice to win, and losing in a clean sweep in the 2020. But all we talked about was obviously new personnel coming in, and there was obviously no hangover for them. I'm sure it must play on your mind a little bit. You're a human, and towards the end, when we lost a couple of wickets, but at the same time, I think our last game was a World Cup final. A lot of guys have played in a lot of pressure situations. Probably a little bit more experience on this side than the 2020 side, and I think that showed. But it's only one game. There's still a long way to go in this series and the summer. But it's always nice to just get that monkey. लीबिया में खाना जंगी के फरीकों के नुमाइंदों के जिनेवा में जारी इजलास में अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देने पर इत्तेफाक राय हो गया है। इस बात की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के लीबिया के लिए खुसूसी मंदूब ने भी कर दी है। लीबिया में खाना जंगी के फरीक मुस्तकिल जंगबंदी पर आमादा। अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देने पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब ने की तस्दीक। लीबिया में खाना जंगी के फरीकों के नुमाइंदों के जिनेवा इजलास में अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देने पर इत्तेफाक राय हो गया है। इस बात की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के लीबिया के लिए खुसूसी मंदूब ने भी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज के खुसूसी नुमाइंदे और लीबिया में आलमी इदारे की इमदादी मिशन के सरबराह गुसान सलामी ने मंगल को जिनेवा में बताया कि इस मुल्क में कई बरसों से जारी खाना जंगी के खात्मे की कोशिशों में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। सलामी ने कहा कि खाना जंगी के बड़े फरीकैन के दरमियान जिनेवा में हुई बातचीत में ये उसूली इत्तेफाक राय हो गया है कि शुमाली अफ्रीका की इस रियासत में अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देना चाहिए। ताहम गुसान सलामी ने कहा कि अभी ये तय करना बाकी है कि इस मुस्तकिल फायरबंदी की शर्तें क्या हैं। इस बातचीत में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम करदा लीबिया के कौमी मुआहदे के तहत कायम होने वाली हुकूमत या GNA के नामजद करदा 5 आला अहलकारों के अलावा इतनी ही तादाद में जंगी लीडर और लीबियन नेशनल आर्मी LNA के सरबराह खलीफा हफ्तर के नामजद करदा 5 मंदूबीन ने भी हिस्सा लिया। इस बातचीत में सालसी सलामे ने की। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ही इन गैर मुल्की ताकतों पर शदीद तनकीद की थी जो शुमाली अफ्रीका की इस रियासत में कई साला खुरेज तनाज़े में मुदाखलत कर रही हैं। लीबिया 2011 में अशरों तक इक़्तिदार में रहने वाले डिक्टेटर मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के खिलाफ अवामी बगावत और इनकी हलाकत के बाद से मुसलसल खाना जंगी का शिकार है। वहाँ इलाकाई सतह पर बरसरे इक़्तिदार ये 2 बड़े हरीफ धड़े पूरे मुल्क पर अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब बखैर। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक